ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے ہی لگی تھی جب شاہ زین نے اسے باہوں میں تھاما۔ وہ حوریہ شاہ تھی، شاہ انڈسٹریز کے مالک کی اکلوتی بیٹی، اور شاہ زین اسی کمپنی کا گارڈ۔ اگلے ہی لمحے حوریہ نے غصے سے اسے تھپڑ مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ اگر میں گر رہی تھی تو گرنے دیتے، جاہل گارڈ۔ وہ غصے سے کہتی چلی گئی، پر نہیں جانتی تھی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکی تھی۔ گارڈ کے بھیس میں وہ سیکریٹ پولیس ایجنٹ تھا جو خاص مقصد کے گارڈ کے روپ میں تھا۔ 2 دن بعد جب حوریہ کالج جانے کے لیے نکلی تو وہ اس وقت بالکل بے تاثر سے چہرے کے ساتھ اپنے باس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس وقت اس کا باس سخت غصے میں لگ رہا تھا۔ شاہ زین، ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ تمہیں کوئی پروجیکٹ ملا ہو اور تم اب تک اس کی کوئی بہتر رپورٹ پیش نہیں کر سکے ہو۔ اس کا باس انتہائی غصے میں شاہ زین سے مخاطب ہوا تھا۔ شاہ زین ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ سر، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مجھے جس مشن پر بھیجا گیا ہے وہ مشن اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ شہر کے بڑے مگرمچھوں کے منہ میں ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ اس کام میں تھوڑا وقت تو لگتا ہے۔ شاہ زین نے اپنی کمر کے پیچھے ہاتھ باندھے مہذب مگر بے لچک لہجے میں کہا تھا۔ سب لوگ ہی جانتے تھے کہ شاہ زین ایک بے انتہا محنتی، ایماندار سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ اس نے اپنا ہر مشن ہمیشہ کامیابی سے سر انجام دیا ہے۔ اس بار بھی سب کی توقعات اسی سے وابستہ تھیں، مگر ابھی تک کوئی بھی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکا تھا۔ شاہ زین کا باس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں ٹکرائی تھیں اور پھر شاہ زین وہاں سے نکل گیا۔ وہاں سے نکل کر وہ سیدھا اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچا تھا۔ وہ سارا دن کے بعد بے حد تھکا ہوا تھا۔ سخت دھوپ نے اس کا رنگ جلا دیا تھا۔ وہ صوفے پر ڈھہ سا گیا، یہاں تک کہ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے پیروں کو جوتوں کی قید سے آزاد کر سکے۔ ابھی اسے کچھ دیر لیٹے گزری تھی جب اسے اپنے پاؤں میں کسی کی انگلیاں رینگتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اترتا سکون محسوس کیا اور پھر اس نے مسکرا کر اپنی آنکھیں کھول دی۔ بابا، آج آپ نے مجھے ڈانٹ لیا، اب آپ کی سزا ہے مجھے ایک اچھی سی چائے پلا دیں۔ شاہ زین نے ناراض نظروں سے اپنے سامنے کھڑے اپنے باس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا اور سیدھا ہو کر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ بہت اچھا آئیڈیا ہے چائے پینے کا، تو میرا بھی دل کر رہا ہے، مصطفیٰ صاحب نے شاہ زین کے برابر میں بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ شاہ زین نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ جاؤ جلدی سے جا کر 2 کپ اچھی سی چائے بنا کر لاؤ، مصطفیٰ صاحب نے شاہ زین کو مسکرا کر دیکھتے کہا۔ بابا، یہ بات بالکل بھی ٹھیک نہیں، کل بھی میں نے ہی چائے بنائی تھی، شاہ زین نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے کچن کی جانب جاتے کہا تھا، اور امریکن طرز کے اوپن کچن میں جا کر اس نے لائٹ آن کی اور چائے کی پتیلی چولہے پر چڑھائی۔ مصطفیٰ صاحب وہیں صوفے پر پاؤں بسار کر بیٹھ گئے تھے اور محبت سے اپنے لختے جگر کو دیکھنے لگے۔ بچپن میں ہی اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی اور مصطفیٰ صاحب نے ہی اسے ماں اور باپ بن کر پالا تھا، مگر ساتھ ہی انہوں نے شاہ زین کو زندگی کی سختیوں سے بھی روشناس کرایا تھا۔ جب ہی شاہ زین نے بھی اپنے بابا کی طرح ایجنسی کو جوائن کیا اور جلد ہی اس نے اس ایجنسی میں اپنی محنت کی بدولت ایک خاص مقام حاصل کر لیا، مگر اس بار انہوں نے شاہ زین کو جس مشن پر بھیجا تھا وہ مشن آسان بالکل نہیں تھا۔ وہاں قدم قدم پر اس کی زندگی کو خطرہ لاحق تھا۔ جن لوگوں کے خلاف وہ کام کر رہا تھا، اگر ان لوگوں میں سے کسی کو بھی اس بات کا علم ہو جاتا کہ جو شخص ان کی کمپنی میں ایک گارڈ کی حیثیت سے کام کر رہا ہے، در حقیقت وہ گارڈ نہیں ہے بلکہ ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے، تو اس کی زندگی کا وہیں خاتمہ ہو جاتا۔ اس لیے مصطفیٰ صاحب کا دل ہر پل شاہ زین کے لیے پریشان ہی رہتا تھا۔ وہ اس حق میں بالکل بھی نہیں تھے کہ شاہ زین اس مشن پر جاتا، مگر شاہ زین نے اس مشن پر جانے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ مصطفیٰ جب جانتے تھے کہ شاہ زین اپنی باتوں سے پیچھے نہیں ہٹتا، انہوں نے شاہ زین پر بہت زور دیا تھا کہ وہ کسی بھی طرح سے اس پروجیکٹ سے پیچھے ہٹ جائے، مگر شاہ زین نے صاف انکار کر دیا۔ مصطفیٰ صاحب چاہتے تھے شاہ زین جلد از جلد اس مشن کو مکمل کرے تاکہ ان کی پریشانی کچھ کم ہو سکے۔
اسی لیے وہ آج شاہزین پر بری طرح غصہ ہو گئے تھے۔ شاہزین بھی ان کے غصے کی وجہ کو بہت اچھے سے سمجھتا تھا، اس لیے سر جھکا کر ان کی ساری ڈانٹ برداشت کر گیا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اپنے بابا سے بہت پیار کرتا تھا اور اس دنیا میں ان دونوں کا ایک دوسرے کے سوا کوئی نہیں تھا۔ مصطفیٰ صاحب کی شاہزین میں جان بستی تھی تو شاہزین بھی انہیں دیکھ دیکھ کر جیتا تھا۔ دونوں کا ہی اس دنیا میں ایک دوسرے کے سوا کوئی آسرا نہیں تھا۔ مصطفیٰ صاحب تو شاہزین کی ایجنسی میں آنے کے بھی خلاف تھے، مگر شاہزین ہمیشہ سے اپنے بابا کو دیکھتا آیا تھا۔ وہ انہی کی طرح ایک قابل افسر بننا چاہتا تھا اور اس نے یہ کر بھی دکھایا تھا۔ آج وہ اپنے بابا کی طرح ہی ایک قابل آفیسر تھا۔ اس نے اپنا ہدف، مشن بہت ہی کامیابی کے ساتھ مکمل کیا تھا، اور اب حال میں وہ جس مشن پر تھا اس کے لیے اسے بہت احتیاط کی ضرورت تھی۔ شاہزین حسب عادت صبح 7 بجے ہی آفس پہنچ گیا اور اب آفس کے برابر کھڑا اپنی نوکری کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ وہ اس آفس میں ایک معمولی گارڈ کی حیثیت سے فائز تھا۔ وہاں موجود کوئی بھی شخص نہیں جانتا تھا کہ شاہزین گارڈ کے بھیس میں ایک سیکریٹ ایجنٹ ہے۔ شاہزین آج بھی حسب معمول دروازے کے باہر اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ اس عالیشان آفس کے شیشے کے دروازے پر اے سی کی ٹھنڈک سے نمی آئی ہوئی تھی، جبکہ شاہزین باہر دھوپ میں کھڑا پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، مگر اب اسے ان سب کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ جلد ہی خود کو ماحول کے مطابق ڈھال لیا کرتا، اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ شاہزین گارڈ کے یونیفارم میں ملبوس گارڈ ہی لگ رہا تھا، جبکہ اس نے اپنا حلیہ بدلا ہوا تھا۔ اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، جبکہ اس کی شیف بڑی ہوئی تھی۔ اسی اثنا میں آفس کی عمارت کے سامنے ایک عالیشان گاڑی آ کر رکی۔ شاہزین فوراً ہی اپنی جگہ پر الرٹ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ حوریہ شاہ نے ایک نزاکت کے ساتھ گاڑی سے باہر اپنے قدم رکھے۔ شاہزین نے اس کا لباس دیکھ کر اپنا منہ دوسری جانب پھیر لیا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی حوریہ کو دیکھ کر اپنا منہ دوسری جانب پھیر لیا کرتا تھا۔ اسے کبھی بھی اس کا پہناوا نہیں بھاتا تھا۔ وہ ایک امیر باپ کی بیٹی تھی جو انتہائی بگڑی ہوئی اور خود سر تھی۔ وہ اپنے سامنے کسی کو نہیں گردانتی تھی۔ ابھی وہ گاڑی سے نکلی ہی تھی جب اس کا پاؤں پتھر پر پڑا اور وہ بری طرح سے لڑکھڑا سی گئی۔ نازک سی ہیل میں اس کے پیر مکید تھے۔ شاہزین نے فوراً ہی آگے بڑھ کر حوریہ کو اپنی باہوں میں تھاما اور اسے گرنے سے بچایا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ گرنے کے خوف سے حوریہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، اور پھر شاہزین نے غصے سے حوریہ کے چہرے کو مزید سرخ ہوتے دیکھا۔ شاہزین کی نظروں نے اس سے زیادہ حسین منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے حوریہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے شاہزین کو دھکا دے کر خود سے دور کیا، اور پھر اگلے ہی لمحے حوریہ کا ہاتھ اٹھا اور شاہزین کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ وہ بھلا یہ بات کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ ایک معمولی گارڈ اسے ہاتھ لگائے؟ وہ شاہ انڈسٹریز کی مالک کی اکلوتی بیٹی تھی، اور شاہزین اسی کمپنی کا ایک معمولی سا گارڈ۔ وہ بھلا کیسے یہ برداشت کر سکتی تھی کہ ایک معمولی گارڈ اسے ہاتھ لگائے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ وہ غصے سے شاہزین پر پھنکاری تھی۔ آپ گر رہی تھی، اسی لیے میں نے آپ کو تھاما۔ شاہزین نے غصے سے اس سر پھیری لڑکی کی طرف دیکھا جسے سڑک پر گرنا تو منظور تھا، مگر ایک معمولی گارڈ کا خود کو ہاتھ لگانا بالکل قبول نہیں تھا۔ اور پھر اس نے اپنے غصے پر قابو پاتے حوریہ سے نرم لہجے میں کہا تھا، ہاں تمہیں گر رہی تھی تو گرنے دیتے، کس سے پوچھ کر تم نے مجھے ہاتھ لگایا؟ حوریہ کا غصہ کسی طور کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ غصے سے بری طرح بل کھا رہی تھی۔ آس پاس کھڑے سبھی لوگ شاہزین کو ترہم بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شاہزین اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ اپنا دفاع کر سکتا یا حوریہ کو کوئی سخت بات کہہ سکتا، اسی لیے اس نے خاموشی سے حوریہ کے غصے کے سامنے سر جھکا لیا۔ مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے اپنی اوقات یاد کر لیتے، حوریہ نے پیر پٹکتے ہوئے غصے سے کہا تھا اور بازو کو ہاتھوں سے صاف کیا۔ تمہاری اتنی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ تم حوریہ شاہ کو ہاتھ لگاؤ۔ آئندہ اگر اس طرح کی ہمت کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں کھڑے کھڑے نوکری سے نکال دوں گی۔
हुरिया ने शहादत की उंगली उठाकर उसे वार्न किया था। शाहजैन सर्द आ भर कर रह गया। शाहजैन का बस नहीं चल रहा था वो पल भर में इस सामने खड़ी छोटी सी लड़की का दिमाग दुरुस्त कर दे और उसे अच्छे से अपनी हैसियत और औकात का अंदाज़ा करवा दे, मगर वो जब्त किए खड़ा रहा। ये उसके एक काम का हिस्सा था। हुरिया शाह अपने दिल की भड़ास निकालकर अंदर जा चुकी थी। बाकी सब लोग भी दोबारा से अपने अपने कामों में लग गए, मगर शाहजैन लब भींचे खड़ा बंद दरवाजे को देखता रहा जिसके पार वो मगरूर लड़की गई थी। शाहजैन ने जब्त से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और फिर सर झटक कर दोबारा से अपनी जगह पर आ खड़ा हुआ। हुरिया शाह नहीं जानती थी कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही है। जिस शख्स को वो गार्ड समझकर जलील कर रही थी वो एक मामूली गार्ड नहीं था, बल्कि एक सीक्रेट एजेंट था जो किसी खास मकसद के लिए गार्ड के रूप में उस ऑफिस के बाहर मौजूद था। हुरिया शाह इंडस्ट्रीज के मालिक की इकलौती और लाडली बेटी थी। वो अक्सर कॉलेज के बाद ऑफिस आ जाया करती। पिछले 2 दिनों से वो ऑफिस नहीं आ रही थी। तीसरे दिन शाहजैन अपना रूप बदले उसके कॉलेज के बाहर मौजूद था। हुरिया नहीं जानती थी कि थप्पड़ मारने की उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हुरिया कॉलेज गेट पर ड्राइवर के इंतजार में खड़ी थी। कॉलेज तकरीबन खाली हो गया था, मगर हुरिया का ड्राइवर उसे अभी तक लेने नहीं आया था। अब तो हुरिया को कोफ्त होने लगी। वो मुसलसल ड्राइवर का नंबर डायल कर रही थी, मगर ड्राइवर फ़ोन नहीं उठा रहा था। धूप की तमाज़त से हुरिया का चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसने माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे से कतरे जगमगा रहे थे, मगर वो नहीं जानती थी वो इस वक्त किसी की नज़रों के हिसार में है। हुरिया ने खुद ही घर जाने का फैसला किया। ये फैसला उसके लिए बहुत भारी साबित होने वाला था। वो कॉलेज से पैदल ही निकल आई थी। अब उसके अंदर मज़ीद इंतज़ार करने की सकत बिल्कुल नहीं थी। वो बहुत गुस्से में थी। हुरिया का घर कॉलेज से कुछ फासले पर था, इसीलिए उसने पैदल ही जाने का फैसला किया और निस्बतन एक सुनसान गली में पहुंची। वो बार बार अपने माथे पर आया पसीना साफ कर रही थी। इसी असना में उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। हुरिया ठुठक कर अपनी जगह पर रुकी और फिर उसने इस गाड़ी में से एक नकाब पोश उतरते हुए देखा। हुरिया ने उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना चाहा था, मगर वो नकाब पोश हुरिया की राह में हायल हो गया। हुरिया ने हैरानी से अपने सामने खड़े उस लंबे चौड़े शख्स को देखा, मगर अगले ही लम्हे वो कुछ भी सोच समझ नहीं पाई। उस नकाब पोश ने हुरिया के कंधे पर हाथ रखा और उसके कंधे की मखसूस रग दबाई। एक ही लम्हे में हुरिया की आंखें बंद हुईं और वो होशो खिरत से बेगाना होते हुए सामने खड़े नकाब पोश की बाहों में झूल गई। उस शख्स ने हुरिया को नरमी से गाड़ी की पिछली सीट पर डाला और तेजी से गाड़ी वहां से निकाल कर ले गया। उसने ये सारा काम इस कदर एहतियात से किया था कि किसी को कानो कान भी खबर ना हो सकी। हुरिया को होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद पाया। वो अपना चकराता हुआ सर थाम कर बैठ गई। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पूरी आंखें खोल सकती। उसने चंद लम्हों के लिए अपनी आंखें खोली और फिर दोबारा से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर पहले का मंजर पूरी जुजियत के साथ उसे याद आया तो वो एक झटके से उठकर बैठी। उसने घबरा कर इर्द गिर्द नजरें दौड़ाईं। वो एक अनजान जगह पर मौजूद थी। तेजी से बेड से उठी, मगर उसका पांव बेड के किनारे से टकराया और उसके हलक से एक दिल खराश चीख बरामद हुई। अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब भी उसका पांव बुरी तरह से टकराया था, वो बेख्तियार जमीन पर बैठी। दर्द की शिद्दत से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। कुछ देर तक तो वो वहीं बैठी रोती रही, मगर फिर हिम्मत करके अपनी जगह से खड़ी हुई और दीवारों पर हाथ मारकर स्विच बोर्ड तलाश करने लगी। चंद लम्हों में ही पूरा कमरा रोशन हो गया था। हुरिया ने हैरानी से उस कमरे को देखा। वो कमरा खूबसूरती और नफासत का मुंह बोलता सबूत था। पूरा कमरा बेज और गोल्डन रंग की थीम पर बना हुआ था। हुरिया हैरानी से यह सब देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे यहाँ कौन लेकर आया। वो दरवाजे की जानिब बढ़ी और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा बाहर से लॉक था। उस कमरे से बाहर निकलने का और कोई रास्ता भी नहीं था। अब की बार वो बुरी तरह परेशान हुई। उसने दरवाज़ा बजाने की कोशिश की थी, मगर शायद उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था।
कोई है यहाँ? मुझे बाहर निकालो। हुरिया ने दरवाज़ा बजाया मगर बाहर बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। वो थक हार कर सोफे पर बैठ गई। उसका पाँव बहुत बुरी तरह दुख रहा था। उसके पाँव पर चोट नहीं लगी थी मगर उसका पाँव इस बुरी तरह से मुड़ा था कि उसके पाँव पर सूजन होने लगी थी। हुरिया ने अपना बैग ढूंढने की कोशिश की मगर इस कमरे में उसका बैग मौजूद नहीं था। हुरिया के बैग में ही उसका मोबाइल फ़ोन था। काफ़ी देर तक वो परेशान बैठी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था वह इस सूरत हाल में क्या करे। इसी असना में उसकी नज़र दीवार पर लगी घड़ी की जानिब गई और वो अपनी जगह से 2 फुट उछल गई। दीवार पर लगी घड़ी में रात के 9 बज रहे थे। वो तो कॉलेज से घर जाने के लिए 2 बजे निकली थी और अब रात के 9 बज रहे थे। क्या वो इतनी देर तक बेहोश रही? उसने दीवार गिर पर्दों की जानिब देखा और फिर जल्दी से उठकर कमरे के पर्दे हटाए। सामने का मंजर देखकर वो दंग रह गई थी। वो किसी बिल्डिंग के बहुत ही ऊंचे फ्लोर पर मौजूद थी। वो गैलरी में नहीं जा सकती थी क्योंकि गैलरी का दरवाज़ा लॉक था। शीशे की खिड़कियों के पार रात का मंजर वाज़ेह दिखाई दे रहा था। वो समझ नहीं सकी थी कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद थी। उसके पैर में भी दर्द होने लगा था। वो फिर से आकर सोफे पर बैठ गई। वो यहाँ से निकलने के तरीके सोच रही थी मगर वो ये नहीं जानती थी कि यहाँ से बाहर निकलना इतना आसान हरगिज़ नहीं होगा। वो अपने दोनों हाथों में सर गिराए बैठी थी। उसे इस वक्त अपने बाबा की फिक्र थी। उसे यकीन था उसके बाबा लाजमी उसके लिए परेशान हो रहे होंगे और अब तो उसे ढूंढने की भी कोशिश कर रहे होंगे। इसी असना में कमरे का दरवाज़ा खुला और वही नकाबपोश शख्स कमरे में दाखिल हुआ। बहुत जल्दी तुम्हें होश आ गया। मुझे तो लगा था जितनी नाजुक सी तुम हो कल तक भी तुम्हें होश नहीं आएगा। उस नकाबपोश शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा था मगर उसकी मुस्कुराहट सिर्फ इसकी आंखों से ही झलक सकी थी क्योंकि उसका चेहरा मास्क के पीछे छुपा हुआ था। उसे देखकर हुरिया ने बेख्तियार अपनी जगह खड़ी हुई। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? हुरिया ने गुस्से से अपनी जगह से खड़े होते पूछा। वो इस लम्हे ये भी भूल गई थी कि उसके पाँव में चोट लगी है। शाहजैन ने अपने चेहरे से मास्क हटाया। अपने ऑफिस के गार्ड को इस रूप में अपने सामने देखकर हुरिया सांस भी लेना भूल गई। शाहजैन ने ब्राउन रंग की जीन्स पर वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। घने स्याह बाल माथे पर बिखरे हुए। शर्ट की आस्तीनें कोहनियों तक फोल्ड की हुई थी जिसमें से उसके हाथों की नीली उभरी हुई रगें वाज़ेह नजर आ रही थी। हुरिया हैरत से आंखें फाड़े शाहजैन को देख रही थी। अगर 2 दिन पहले वो शाहजैन की बाहों में ना गिरती तो वो कभी शाहजैन को पहचान नहीं सकती थी। तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? उसी लम्हे पहली बार हुरिया को शाहजैन से खौफ महसूस हुआ। शाहजैन की आंखों में छाई सर्द महरी को हुरिया ने अपनी रीढ़ की हड्डी में उतरता महसूस किया था। हुरिया की बात सुनकर वो मुस्कुराया। ये सवाल तो तुम खुद से करो कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया। तुमने ऐसा क्या किया है जो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ? शाहजैन ने हुरिया की जानिब 2 कदम बढ़ाते हुए सर्द लहजे में उससे कहा। हुरिया ने बेइख्तियार थूक निकला। मुझे मेरे घर वापस छोड़ कर आओ। अगर मेरे बाबा को पता चल गया कि तुमने मुझे मेरे कॉलेज से अगवा किया है तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। हुरिया ने अपने अंदर हिम्मत जमा करते शाहजैन को डराना चाहा था। हुरिया की बात सुनकर शाहजैन का कहकहा बरामद हुआ। इत्मीनान से बेड पर नीम दराज हो गया। तुम्हारे बाप को कभी पता नहीं चलेगा कि तुम इस वक्त कहाँ हो। वो कभी भी मुझ तक नहीं पहुँच सकेगा। शाहजैन ने इत्मीनान से हुरिया को जवाब दिया। अपनी कंपनी में काम करने वाले एक मामूली गार्ड की हिम्मत देखकर हुरिया हैरान ही तो रह गई थी। वो कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। वो गौर से शाहजैन को देख रही थी। ये वो शख्स तो हरगिज़ नहीं था, वो जो गार्ड के रूप में उसके सामने मौजूद था। जिस शख्स ने इसके हाथों से थप्पड़ खाया था वो तो कोई और ही शख्स था जो सामने अपनी शख्सियत से दहशत तारी कर दे। तुम कौन हो? हुरिया ने धड़कते दिल के साथ सवाल किया। शाहजैन ने गहरी नज़रों से हुरिया की तरफ देखा। वो इस लड़की को बेअकल और मगरूर समझ रहा था। वो इतनी भी बेअकल नहीं थी। वो जल्द ही भांप गई थी कि शाहजैन कोई और ही है। ये तुमने बहुत अच्छा सवाल किया मगर इसका जवाब तुम्हें इतनी जल्दी हरगिज़ नहीं मिलेगा।
जिस दिन मैं तुम्हारे बाप और उसके बिजनेस पार्टनर की सच्चाई को मंजर आम पर लेकर आऊंगा, उस दिन तुम्हें अपने सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। शाहजैन ने हुरिया की आंखों में झांकते हुए इत्मीनान से जवाब दिया। तुम मेरे बाबा को जानते नहीं हो, वो जल्द मुझ तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद तुम बच नहीं सकोगे। हुरिया ने तनफ्फुर से शाहजैन को जवाब दिया। मैं यही तो चाहता हूं कि तुम्हारा बाप जल्द मुझ तक पहुंच जाए, मुझे जरा उसकी लगामें कसनी है। शाहजैन ने भी दिल जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर हुरिया किलस कर रह गई। अभी वो उसे कुछ सख्त जवाब देती कि उसकी नज़र कमरे के खुले दरवाजे पर पड़ी। हुरिया ने इस मौके को गनीमत जाना और फिर उसने इत्मीनान से बेड पर नीम दराज शाहजैन की तरफ देखा। वो भागते हुए कमरे से बाहर निकली थी, मगर शाहजैन इत्मीनान से अपनी जगह लेटा रहा। हुरिया फौरन बाहर जाने वाले दरवाजे की सिमत बढ़ी और उसे खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा फिंगरप्रिंट से लॉक था। वो उसे इतनी आसानी से हरगिज़ खोल नहीं सकती थी। वो बुरी तरह से झुंझुलाई थी। हुरिया ने गुस्से के मारे दरवाजे को जोर से पीट दिया, मगर कोई भी उसकी मदद को नहीं आया था। वो अब की बार बुरी तरह परेशान हुई थी। वो तो समझ रही थी कि वो आसानी से यहाँ से भाग सकती है, मगर मुकाबिल भी उसकी सोच से ज़्यादा शातिर था। जब भी वो इतनी आराम से अंदर लेटा हुआ था, उसे पता था कि हुरिया यहाँ से निकलकर कहीं नहीं जा सकती। हुरिया बुरी तरह किलस कर रह गई। तुम यहाँ से इतनी आराम से कहीं नहीं जा सकती और ना ही तुम्हारी आवाज़ बाहर जाएगी। हम लोग जिस फ्लोर पर खड़े हैं ये इस बिल्डिंग का पेंट हाउस है, इसलिए चीखने चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं। शाहजैन ने लाउंज में आते हुरिया की मालूमात में इजाफा किया। हुरिया एकदम थम गई थी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? मैं और मेरे बाबा तुम्हें जानते तक नहीं हैं। हुरिया ने अपने आंसुओं पर काबू पाने की नाकाम कोशिश करते कहा। शाहजैन चलता हुआ उसके नज़दीक आया, यहाँ तक कि हुरिया बिल्कुल दरवाजे से लग चुकी थी। शाहजैन ने अपनी सर्द आंखें हुरिया की भीगी हुई आंखों में गाड़ी। हुरिया की नीली झील सी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, जो किसी भी लम्हे छलकने को बेताब थी। अगर तुम मुझसे थप्पड़ मारने का बदला लेना चाहते हो तो मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मगर प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। हुरिया ने बमुश्किल आंसुओं के दरमियान कहा। हुरिया के दिल में खौफ पंजे गाड़ने लगा था। उसका बदन हौले हौले कांप रहा था। शाहजैन की नज़रों से उसकी घबराहट नहीं छुप सकी थी। शाहजैन उससे दूर हुआ और किचन की जानिब कदम बढ़ाए। बैठ जाओ, कब तक यूं खड़ी रहोगी? शाहजैन ने किचन में जाते उसे आवाज़ लगाई थी, क्योंकि हुरिया दरवाजे के साथ लगी मुसलसल रोए जा रही थी। शाहजैन ने फ्रिज में से जूस की बोतल निकाली और एक ग्लास में पलटा। वो ग्लास हाथ में पकड़े वापस लाउंज में आया और सोफे पर बैठकर उसने टीवी ऑन किया। सामने रखी टेबल पर इत्मीनान से पांव बसार कर बैठ गया और हाथ में पकड़े जूस के ग्लास में से छोटे छोटे सिप भरता टीवी देखने लगा। वो दरवाजे के साथ लगी कांपती हुई हुरिया को यकसर फरामोश कर चुका था। हुरिया 2 दिन से इसी पेंट हाउस में कैद थी। शाहजैन तो उसे वहीं छोड़कर वापस अपने घर आ गया था। वो जानता था हुरिया को कमज़ोर करने के लिए ये सब करना ज़रूरी था। आज 2 दिन बाद वो वापस अपने पेंट हाउस गया। उसने इन 2 दिनों में सबसे अहम फाइल हासिल की थी। उस फाइल पर दिलावर शाह के साइन बहुत ज़रूरी थे और ये काम सिर्फ हुरिया कर सकती थी। इसलिए शाहजैन ने हुरिया को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। वो फ्लैट में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र सोफे पर गुमसुम सी बैठी हुरिया पर पड़ी। शाहजैन ने पूरे फ्लैट में नज़रें दौड़ाईं। हर चीज़ अपनी जगह से हटी हुई थी। उस फ्लैट को देखकर ये महसूस हो रहा था जैसे इस फ्लैट में कोई तूफान आकर गुजर गया हो। शाहजैन ने बेख्तियार एक गहरी सांस भरी। ये पेंट हाउस उसने अपनी पसंद से सजाया था। वो इसमें लगी एक एक चीज़ अपनी मर्जी से लेकर आया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि हुरिया शाह उसका ऐसा हाल कर देगी। उसने मुट्ठियां भींचकर अपने गुस्से पर जब्त करना चाहा था। ये तुमने मेरे घर का क्या हाल किया है? शाहजैन ने बिगड़े हुए तेवरों से हुरिया को देखते सवाल किया। मुझे मेरे घर जाने दो, वरना मैं तुम्हारे घर का इससे भी बुरा हाल कर दूंगी।
حوریہ نے شاہزین کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ 2 دن سے سوئی نہ ہو۔ میں تمہیں یہاں سے ضرور جانے دوں گا، مگر اپنی شرطوں پر، شاہزین نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ حوریہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا، مگر منہ سے کچھ بھی نہ بولی۔ میں یہ بات بھی بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ تم 2 دن سے گھر سے غائب ہو، مگر تمہارے باپ کو اس بات کی پرواہ بالکل نہیں۔ اس نے تمہیں ڈھونڈنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی، بلکہ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ تم 2 دن سے اپنے گھر میں موجود نہیں ہو۔ شاہزین کی حوریہ کی آنکھوں میں جھانکتے اسے آئینہ دکھایا اور اسے جھنجھوڑنے کی کوشش کی تھی۔ حوریہ کے چہرے کا رنگ پل بھر میں ہی سفید پڑا تھا۔ حوریہ نے شاہزین سے بے اختیار نظریں چرائی تھیں۔ شاہزین نے اس کا نظریں چرانا واضح محسوس کیا۔ اپنی شرط بتاؤ، حوریہ نے تند لہجے میں کہا تھا۔ تم اپنے باپ کو کل شام میرے بتائے ریسٹورنٹ میں بلاؤ گی اور میری دی گئی فائل پر سائن کراؤ گی۔ شاہزین نے اسے ساری تفصیل بتائی۔ اور میں یہ کیوں کروں گی؟ حوریہ نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ تم یہ سب اس لیے کرو گی کیونکہ اس ہوٹل میں میرا ایک آدمی تمہارے باپ کا نشانہ لے کر بیٹھا ہوگا۔ اگر تم نے کوئی بھی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو وہیں تمہارا باپ اپنی زندگی کی بازی ہار جائے گا۔ شاہزین خطرناک حد تک صفاق ہو گیا تھا۔ حوریہ نے خوف سے شاہزین کی طرف دیکھا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ہم لوگوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ حوریہ نے شاہزین سے سوال کیا۔ اس سوال کا جواب تمہیں بہت جلد مل جائے گا۔ بس میں جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرتی جاؤ، اور مجھے دھوکہ دینے کی اور کوئی بھی چالاکی کرنے کی بالکل کوشش مت کرنا، کیونکہ تمہارے باپ کی زندگی میرے ایک اشارے کی مرہون منت ہے۔ شاہزین نے سرد لہجے میں کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے کمرے کی حالت بھی پورے گھر سے مختلف نہیں تھی۔ جگہ جگہ سامان بکھرا پڑا تھا، بس بیڈ صحیح سلامت تھا۔ یقیناً حوریہ اسی بیڈ پر سو رہی ہوگی جبھی اس نے بیڈ کو چھوڑ دیا، ورنہ کمرے کی ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی تھی۔ شاہزین نے بامشکل خود کو غصہ کرنے سے باز رکھا، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کا دماغ درست کر دے۔ حوریہ شاہ اپنے باپ دلاور شاہ کو فون کر کے ایک ہوٹل میں بلا رہی تھی۔ وہ ہوٹل شہر کے سب سے مہنگے ہوٹلز میں شمار ہوتا تھا۔ حوریہ جانتی تھی کہ شاہزین پل پر اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ دلاور شاہ وقت پر پہنچ بھی گئے تھے۔ تم 2 دن سے گھر سے غائب ہو اور اب مجھے ملنے یہاں بلایا ہے، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ دلاور شاہ نے بگڑے ہوئے لہجے میں حوریہ سے پوچھا۔ ان کا رویہ اور لب و لہجہ دیکھ کر حوریہ کے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ بابا، میں 2 دن سے گھر نہیں آئی اور آپ نے مجھے تلاش کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ آپ کو ذرا بھی اس بات کی فکر نہیں کہ کہیں میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آ گیا ہو؟ میں زندہ بھی ہوں یا مر گئی؟ آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی میرے بارے میں سوچا؟ آپ کو میری بالکل فکر نہیں ہوئی؟ حوریہ اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے اپنے باغ سے شکوہ کر رہی تھی۔ حوریہ، تم جانتی ہو میرے پاس ان ساری فضولیات کے لیے بالکل وقت نہیں ہے۔ تم پہلے بھی کئی بار گھر سے اپنی فرینڈز کے ساتھ جاتی رہی ہو، تو اس بار ایسا کیا انوکھا ہو گیا؟ دلاور شاہ نے غصے سے حوریہ کی جانب دیکھتے کہا۔ آپ کو تو کبھی کوئی فرق نہیں پڑا، میں تو بھول ہی گئی تھی میرا باپ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا۔ حوریہ نے اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل ٹیبل پر رکھی۔ مجھے اس فائل پر آپ کے سائن چاہیے، حوریہ نے لوکھے لہجے میں کہا تھا۔ یہ کیسی فائل ہے؟ دلاور شاہ نے چونک کر حوریہ کی جانب دیکھا۔ آفس کی فائل ہے، ایک پروجیکٹ اٹکا ہوا ہے، اسی لیے آپ کے سائن چاہیے، حوریہ نے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہا تھا۔ در حقیقت آفس میں ایک پروجیکٹ اٹکا ہوا تھا جس پر دلاور شاہ کے سائن چاہیے تھے، مگر یہ اس پروجیکٹ کی فائل نہیں تھی۔ دلاور شاہ کو شاید کہیں جانے کی جلدی تھی، جب ہی انہوں نے فائل پڑھے بغیر ہی سائن کر کے حوریہ کی جانب فائل بڑھائی اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجھے اس وقت بہت اہم میٹنگ میں جانا ہے، رات کو گھر پر ملاقات ہوگی، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ دلاور شاہ نے حوریہ کے
सुने हुए चेहरे की तरफ देखते हुए कहा और वहां से निकल गए। हुरिया सुन सी बैठी थी। उसे हमेशा से दिलावर शाह के रवैये से शिकवा रहा था। दोनों बाप बेटे की कभी बनी नहीं थी। दिलावर शाह को पैसे के आगे किसी की परवाह नहीं थी। वो हर जायज़ और नाजायज़ काम करके पैसा कमाना चाहते थे। दिलावर शाह जा चुके थे, जबकि हुरिया वही बैठी अपने बाप की बेहिसी और लापरवाही पर अपने आंसू पीने की कोशिश कर रही थी। इसी असना में शाहजैन उसके सामने आकर बैठा और उसके हाथ से फाइल ले ली। मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब मेरे बाबा का पीछा छोड़ दो। हुरिया ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए शाहजैन से कहा। शाहजैन ने सर्द नज़रों से हुरिया की तरफ देखा और कुछ भी कहे बगैर वहां से उठकर बाहर निकल गया। उसके लिए अब हुरिया बेकार थी। अब उसे अपने साथ रखने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए कुछ भी कहे बिना ही वो वहां से उठ गया था। मगर वो इस लड़की के लिए अफसोस ज़दा भी था, जो अपने बाप से बेइंतहा प्यार करती थी, मगर उसका बाप उसे महज अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मगर अब यहाँ उसका काम ख़त्म हो गया था। जल्द ही दिलावर शाह की असलियत सबके सामने आने वाली थी। उसे ये फाइल ले जाकर अपने बॉस के हवाले करनी थी। उसके बाद ही दिलावर शाह के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती थी। उसने वहीं खड़े खड़े मुस्तफ़ा साहब को फ़ोन किया, मगर मुस्तफ़ा साहब चंद दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए थे, जब भी उनसे राब्ता ना हो सका। वो फाइल लेकर शाहजैन सीधा अपने पेंट हाउस पर आया। उसे सबसे पहले घर की हालत सुधारनी थी। उसे रह रहकर हुरिया पर गुस्सा आ रहा था, मगर अब क्या किया जा सकता था। वो हुरिया से उस फाइल पर साइन करवाने के लिए, साथ ही उसे थप्पड़ का सबक सिखाने के लिए भी इस घर में लाया था, मगर जाने क्यों वो हुरिया को सबक नहीं सिखा सका। वो जब इसके सामने आई तो वो बिल्कुल बेबस हो गया था। वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका था, इसलिए उसे जाने दिया। वो लड़की जो दिखने में इंतहाई मगरूर और अक्खड़ मिजाज लगती थी, वो अपने बाप की बेहिसी और लापरवाही की वजह से कितनी टूटी हुई थी, इसे बखूबी अंदाज़ा हो गया था। मगर अब शाहजैन की ज़िंदगी से उस लड़की का मगरूर और बददिमाग लड़की का चैप्टर ख़त्म हो गया था, इसलिए अब वो हुरिया के बारे में कुछ भी सोचना नहीं चाहता था। उसने हुरिया की सारी सोचों को अपने जहन से झटका और घर की सफाई में जुट गया। शाहजैन अपने घर में गहरी नींद सो रहा था जब उसका मोबाइल मुसलसल बज कर बंद हो गया। शाहजैन ने बड़ी मुश्किलों से अपनी आंखें खोली और अंधेरे में मोबाइल की स्क्रीन की जानिब देखा। वो कोई अनजाना नंबर था। शाहजैन ने फ़ोन कान से लगाया था, मगर दूसरी जानिब वो हुरिया की घबराई हुई आवाज़ सुनकर फ़ौरन अपनी जगह पर उठकर बैठ गया। वो हुरिया की आवाज़ को अच्छे से जानता था। शाहजैन प्लीज़ मुझे बचा लो। हुरिया की रोती हुई आवाज़ उसके कान से टकराई। उसकी नींद भप से उड़ी थी। दूसरी जानिब हुरिया शाह उससे मदद मांग रही थी। वो इस बात की तवक्को हरगिज़ नहीं कर सकता था। तुम कहाँ हो? शाहजैन ने मोहतात लहजे में पूछा। मैं अपने घर के पीछे वाले गार्डन में छुपी हुई हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो, यहाँ आ जाओ, हुरिया ने रोते हुए कहा। शाहजैन फौरन अपनी जगह से उठा और अपनी शर्ट पहनी। ये उसके लिए कोई जाल भी हो सकता था, मगर वो सारी सोचों को अपने जहन से झटकता हुआ गाड़ी की चाबी उठाकर फौरन ही घर से निकला और रैश ड्राइविंग करते हुए दिलावर शाह के घर की जानिब जा रहा था। उसे इस वक्त सिर्फ हुरिया की फिक्र थी, इसके अलावा वो कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। वो हुरिया के घर की पिछली तरफ पहुंच गया था। उसने बाहर ही अपनी गाड़ी खड़ी की थी और घर की पिछली जानिब से फलांग कर दाखिल हुआ था और इंतहाई होशियारी से लॉन के जानिब बढ़ा। मगर अचानक ही हुरिया दुल्हन के रूप में उसके सामने आई। शाहजैन अपनी जगह पर ठुटक कर रुक गया। वो सांस रोके अपने सामने खड़ी इस हुस्न की मूरत को देख रहा था। शुक्र है तुम आ गए, प्लीज मुझे यहां से दूर ले चलो, हुरिया ने शाहजैन का हाथ थामते घबराए हुए लहजे में कहा था। हुआ क्या है? तुमने मुझे इस तरह से क्यों बुलाया? शाहजैन ने नजरों का जाविया बदलते हुए पूछा। पल भर में ही शाहजैन के दिल की दुनिया पलटी थी। अभी ये सब कुछ बताने का वक्त नहीं है, हुरिया ने सरगोशी की।
शाहजैन उसका हाथ थामे उसे वहां से लेकर खामोशी से निकल आया। सारे रास्ते उन दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही। शाहजैन ने एक दो बार हुरिया को मुखातिब करने की कोशिश की थी, मगर वो खामोशी से सीट की पुश्त से सर टिकाए आंखें मूंदे बैठी थी। कुछ देर बाद शाहजैन अपने पेंट हाउस में उसके सामने बैठा था। मेरे बाबा मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं, बल्कि वो मेरी शादी नहीं करवा रहे। उन्होंने अपने बिजनेस के फ़ायदे के लिए मुझे बेच दिया है। जब भी मैं उस निकाह से भाग गई। हुरिया ने सर झुकाए जवाब दिया। शाहजैन एक ठंडी सांस भर कर रह गया, मगर हुरिया वो तो जैसे बिल्कुल टूट सी गई थी। अगर बाबा मुझ तक पहुंच गए तो वो मुझे जान से मार देंगे। उन्हें कभी मुझसे मोहब्बत नहीं रही, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए मुझे इस्तेमाल करते रहे हैं। हुरिया ने मलाल से अपनी हथेलियां मस ली। शाहजैन अफसोस से उसे देखता रहा। तुम मुझसे निकाह कर लो, तुम्हारे सिवा बाबा से मुझे कोई नहीं बचा सकता। काफी देर बाद हुरिया की आवाज खामोशी में उभरी। शाहजैन ने यकदम ही सर उठाकर बेयकीनी से उसे देखा। हुरिया का सर और नजरें झुकी हुई थी, जबकि शाहजैन बेयकीनी की कैफियत में घिरा बैठा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी मोहब्बत उस पर इस तरह से मेहरबान होगी। जिस लड़की से मोहब्बत को वो खुद से भी छुपाए बैठा था, वही लड़की उसके सामने दुल्हन के रूप में बैठी उससे निकाह करने को कह रही थी। नाक में पहनी नथ का मोती धीरे धीरे हिल रहा था। शाहजैन को भी उसके साथ अपना दिल डोलता हुआ महसूस हुआ। उसकी मोहब्बत उसके सामने बैठी थी। आज वो किसी और की होने जा रही थी और शाहजैन को इस बात की खबर तक नहीं थी, मगर किस्मत ने उसे इस तक पहुंचा दिया, तो अब उसका भी फर्ज बनता था कि वो अपनी मोहब्बत की हिफाजत करे। शाहजैन ने उसी वक्त निकाह ख्वां और गवाहों को बुलाया और चंद लोगों की मौजूदगी में इजाबो कबूल किया। कुछ देर बाद सब लोग रुखसत हो गए थे। हुरिया उसके कमरे में आ गई थी। जिस कमरे में वो चंद दिन पहले कैद थी, आज वो अपनी मर्जी से उस कमरे में खड़ी थी और इसी शख्स की दुल्हन बन चुकी थी। कुछ देर बाद शाहजैन भी कमरे में आया। हुरिया बेड पर सर झुकाए बैठी गहरी सोचों में गुम थी। शाहजैन ने खंगार कर उसे अपनी जानिब मुतवज्जो किया। हुरिया ने भीगी पलकों से उसकी जानिब देखा। मैं जानती हूं तुम मुझसे नफरत करते हो, तुमने हमदर्दी में यह निकाह किया है, मगर मैं जल्द तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। हुरिया ने गहरी सांस भरकर अपने आंसुओं को काबू करने की कोशिश करते कहा, ऐसी बात नहीं है, अभी तुम इस बारे में मत सोचो, जाकर चेंज कर लो। शाहजैन ने नरम लहजे में हुरिया से कहा था। मगर मेरे पास तो कपड़े नहीं हैं। हुरिया नए सिरे से परेशान हुई। मेरी अलमारी में से कुछ देखकर पहन लो, कल तुम्हारे लिए कपड़े आ जाएंगे। शाहजैन ने उसके वजूद से उठने वाली भीनी भीनी खुशबू से नजरें चुराई। हुरिया इस बात में सर हिलाती हुई अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और शाहजैन की अलमारी में से शर्ट और ट्राउज़र निकाला। शाहजैन बेड पर आकर लेट गया। उसने घड़ी में वक्त देखा तो काफ़ी टाइम गुजर गया था। नींद उस पर दोबारा से मेहरबान होने लगी, मगर इसी असना में हुरिया वॉशरूम से बाहर निकली। उसके लंबे गीले बाल उसकी कमर पर बिखरे हुए थे, जबकि चेहरा हर किस्म के मेकअप से आरी था। हुरिया ने बेड पर फैल कर लेटे हुए शाहजैन की तरफ देखा। मैं कहाँ सोऊंगी? हुरिया ने परेशान लहजे में उससे सवाल किया। शाहजैन जल्दी से साइड में हुआ था। हुरिया झिझकती हुई बेड की दूसरी जानिब आकर बैठ गई। अब सो जाओ, परेशान मत हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, शाहजैन ने नरम लहजे में कहा था और साथ ही कमरे की लाइट बंद कर दी थी। हुरिया कुछ देर तक बैठी रही, मगर वो भी अब थक चुकी थी। लेटते ही नींद उस पर भी मेहरबान हो गई। सीसीटीवी की फुटेज निकाली थी। हुरिया को वाज़ेह तौर पर शाहजैन के साथ जाता हुआ देखा जा सकता था। कल रात हुरिया की जिद की वजह से इतनी अहम बिजनेस डील उनके हाथ से निकल गई थी, इसलिए दिलावर शाह गुस्से से पागल हुए जा रहे थे। उन्होंने शाहजैन और हुरिया की तलाश में अपने सारे आदमियों को लगा दिया, मगर उन दोनों का कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। और अब तो हुरिया को घर से गए काफ़ी दिन गुजर गए थे, मगर दिलावर शाह को
मुंह की खानी पड़ी थी। मगर आज दिलावर शाह हुरिया तक पहुंच ही गए। शाहजैन अपने घर नहीं था जब दिलावर शाह के आदमी उसके घर में दाखिल हुए और हुरिया को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। कुछ देर बाद शाहजैन घर आया तो अपने घर में हुरिया को मौजूद ना पाकर गुस्से से पागल हो गया। वो उसी वक्त गाड़ी अंधाधुंध भगाता हुआ दिलावर शाह के बंगले पर पहुंचा, मगर बंगले के गेट पर दिलावर शाह के बॉडीगार्ड ने उसे रोक लिया। शाहजैन ने अपनी जेब से अपना कार्ड निकाला और उन गार्ड्स को दिखाया। उसका कार्ड देखते ही उन गार्ड्स का चेहरा लट्ठे की मानंद सफ़ेद हुआ और वो फौरन ही उसके रास्ते से हट गए। शाहजैन अंदर दाखिल हुआ। मेरे घर से अभी निकल जाओ वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। शाहजैन दिलावर शाह की आंखों में आंखें डाले खड़ा था, जबकि शाहजैन की आवाज़ सुनकर हुरिया अपने कमरे से निकलकर भागती हुई नीचे आई थी और सीधा आकर शाहजैन के सीने से लगी थी और फूट फूट कर रो दी थी। मैं तुम्हें यहां से ले जाने आया हूं, रोना बंद करो। शाहजैन ने हुरिया का चेहरा नरमी से अपने हाथों के प्याले में लेते कहा और फिर दिलावर शाह की तरफ मुतवज्जो हुआ। शाहजैन ने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल दिलावर शाह के सामने टेबल पर फेंकी थी। दिलावर शाह, मेरी बीवी के साथ कोई भी जोर जबरदस्ती करने से पहले एक बार इस फाइल को देख लो। शाहजैन का लहजा बेलचक था। दिलावर शाह ने बेइख्तियार उस फाइल की जानिब हाथ बढ़ाए। उस फाइल को खोलकर उनके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उस फाइल में उनके खिलाफ सारे सबूत मौजूद थे जो उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ले जा सकते थे। वो अपनी जगह पत्थर के हो गए। मुझे हुरिया को यहां से ले जाने दे, वरना ये फाइल आगे जाएगी और आपका जीना हराम हो जाएगा। आपको कहीं छुपने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। शाहजैन ने सर्द लहजे में दिलावर शाह से कहा था और हुरिया का हाथ बेहद मजबूती से थामा था। दिलावर शाह किलस कर रह गए। शाहजैन हुरिया का हाथ थामे वहां से निकल आया। फिक्र मत करो, अब वो कभी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। घर आकर शाहजैन हुरिया के सामने आकर खड़ा हुआ। हुरिया ने भीगी पलकें उठाकर उसकी जानिब देखा। तुमने उस फाइल पर बाबा के साइन करवाए थे? हुरिया ने कुछ गुस्से से शाहजैन से पूछा। शाहजैन मुस्कुराया। तुम कौन हो? हुरिया ने आज उससे वो सवाल कर ही लिया जो बहुत वक्त से उसके दिल में था। मैं एक सीक्रेट एजेंट हूं और तुम्हारे बाबा और उनके बिजनेस पार्टनर्स के खिलाफ सबूत जमा कर रहा था। शाहजैन ने उसकी मालूमात में इजाफा किया। हुरिया उसे देखकर रह गई। अब हम ये सारी बातें बाद में करेंगे, पहले हम दोनों के बारे में कुछ बातें होंगी। शाहजैन ने उसे अपने करीब करते उसके कान में सरगोशी की थी। हुरिया सर से पैर तक सुर्ख पड़ी थी। आखिरकार हुरिया ने भी इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया था। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, हुरिया ने उसकी बाहों में कुसमुसाते हुए कहा। शाहजैन ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। वो मुझसे फाइल गलती से जल गई, हुरिया ने डरे डरे से लहजे में उसे बताया। उसकी बात सुनकर शाहजैन के होंठों पर मुस्कुराहट उभरी थी। कोई बात नहीं, ओरिजिनल फाइल मेरे पास है, शाहजैन ने उसके बालों में मुंह छुपाते हुए कहा था। हुरिया उसे देखकर रह गई, जबकि शाहजैन लम्हा लम्हा उसकी कुर्बत में बहकता जा रहा था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें